हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 14 मई और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इन तक बने रहना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज, in a move to further promote local craftsmanship and entrepreneurship, the Uttar Pradesh government has added 12 new products under its flagship One District One Product scheme, increasing the total to 74 products across the state's 75 districts. This expansion reinforces the government's commitment to empowering artisans, boosting exports, and driving the local economy towards a $1 trillion goal. तो भाई, लोकल क्राफ्ट्समैनशिप और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में 12 नए प्रोडक्ट्स को शामिल किया है और अब जाकर इसके ओडीओपी स्कीम में टोटल जो प्रोडक्ट्स है वो 74 हो गए इसे मिलाकर के। ओके, यह जो एक्सपेंशन किया गया है वह कारीगरों को सशक्त बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की ओर ले जाने की सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। ओके, नेक्स्ट। In a landmark move marking the largest cross-border deal in the Indian banking sector, State Bank of India, along with 7 private banks, have collectively sold a 20% stake in Yes Bank to Japan's Sumitomo Mitsui Banking Corporation for 13,482 crore. This strategic transaction not only signals growing global interest in Indian banking but also highlights Yes Bank's strong turnaround since its 2020 crisis. तो भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7 प्राइवेट बैंक के साथ यस बैंक का जो कलेक्टिवली 20% हिस्सा जो है जापान की सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को 13,482 करोड़ में सेल आउट कर दिया। यह ट्रांजेक्शन्स ग्लोबल इंटरेस्ट को इंडियन बैंकिंग में इंडिकेट करता है और यह यस बैंक के 2020 क्राइसिस के बाद स्ट्रॉन्ग टर्नअराउंड को भी हाईलाइट्स करता है। ओके, नेक्स्ट। The Reserve Bank of India has issued a significant directive aimed at enhancing transparency and borrower protection in the digital lending ecosystem. As per the new guidelines under the RBI Direction 2025, all regulated entities must report the details of their digital lending apps on the RBI new centralized information management system portal starting May 13, 2025. तो भाई, आरबीआई ने बोरोवर के प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी को और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके अनुसार अब जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज है उनको अपने डिजिटल लैंडिंग एप्स की आरबीआई के CIMS पोर्टल यानी कि सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पर रिपोर्टिंग करनी होगी और यह 13 मई से लागू कर दिया है। तो ये बोरोवर के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा स्टेप है और उनके डिजिटल लैंडिंग में विश्वास को भी और मजबूत बनाएगा। ओके, नेक्स्ट। The Royal Government of Bhutan has taken a major step toward digital innovation in tourism by launching a cryptocurrency-based payment system through a strategic partnership with Binance Pay and DK Bank. This move makes Bhutan the first sovereign country to officially integrate crypto payments into its national tourism policy, offering global travelers a seamless cashless experience while enhancing financial inclusion within the kingdom. तो भाई, भूटान सरकार ने बिनांस पे और डीके बैंक के साथ पार्टनरशिप करके टूरिज्म सेक्टर में क्रिप्टो करेंसी बेस्ड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है और ये पहला देश है जिसने अपनी नेशनल टूरिज्म पॉलिसी में क्रिप्टो पेमेंट्स को ऑफिशियली इंटीग्रेट किया है, जो कि फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हुए यात्रियों को सीमलेस और कैशलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ओके, तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है भूटान की करेंसी क्या है। ओके, नेक्स्ट।
In a significant development towards global economic stability, the United States and China have agreed to slash reciprocal tariffs by 115% as part of a 90-day truce in their prolonged trade war. The deal, finalized after high-level talks in Geneva between U.S. Treasury Secretary Scott Bessent and Chinese Vice Premier He Lifeng, marks a major step to ease tensions between the world's two largest economies. तो भाई यूएस और चाइना ने अपने व्यापार युद्ध को कम करने के लिए अहम कदम उठाते हुए 90 दिन के लिए संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं और इस समझौते के तहत दोनों देश अपने अपने टैरिफ में 115% की कटौती करने पर सहमत हुए, जिससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी मिला है। और यह जो डील है वह जेनेवा में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और चाइना के वाइस प्रीमियर ही लिफिंग के उच्च स्तरीय वार्ता के बाद ही फाइनल किया गया है। ओके, नेक्स्ट। In a significant gesture to honor India's armed forces, Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Pawan Kalyan announced a full property tax exemption for homes owned by active defense personnel located within Gram Panchayat areas across the state. The move comes as an expansion of an earlier benefit limited to only retired soldiers or those posted at border areas, and now applies to all active personnel regardless of their current posting. तो भाई आंध्र प्रदेश के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने जितने भी डिफेंस पर्सनल है, सुरक्षा कर्मी है जो कि ग्राम पंचायत, राज्य के ग्राम पंचायत एरियाज में, उनके लिए फुल प्रॉपर्टी टैक्स एग्जम्पशंस का अनाउंसमेंट किया है। यह स्कीम इस पहले भी इस राज्य में थी, लेकिन ये पहले लिमिटेड लोगों के लिए थी। जैसे पहले जो रिटायर्ड सैनिक होते थे और जो बॉर्डर एरियाज में होते थे उन्हीं को ये बेनिफिट दिए जाते थे, लेकिन अब सारे जितने भी एक्टिव पर्सनल है उन पर ये एप्लीकेबल होगा। ओके, नेक्स्ट। Chinese financial services major and group through its affiliate Anfin Netherlands Holding BV has announced plan to sell a 4% stake in fintech company 197 Communication Limited, the parent firm of Paytm, for approximately 2,066 crore via bulk deal on Indian Stock Exchange. The sale will be executed at a floor price of rupees 809.75 per share, representing a 6.5% discount to Paytm's last closing price on the National Stock Exchange. चीन की फाइनेंशियल कंपनी एंड ग्रुप ने अपनी सहयोगी कंपनी एनफिन के थ्रू भारतीय फिनटेक कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड में अपने 4% जो स्टेक है उसको बेचने की घोषणा